if one is aware of themselves, if one is aware of why he took that action in his life, हर चीज का अगर उसके पास एक proper reasoning है, then that candidate has a fair chance of clearing SSB. Another problem that I've seen is achievements वगैरह में people think कि बड़े बड़े achievement होने चाहिए, कि मतलब national खेला हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है. That is not necessary. वो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा, मेरे को तो जब तक मैं इंटरनेशनल फिर नेशनली खेला हूँ मैं मेंशन करूंगा ही नहीं. Jai Hind, everyone. So today we have very bright alumni of SSB Wings, Vashisht Thapa, who has currently secured All India rank 41 in the CDS All India merit. So congratulations, first of all, Vashisht, from the whole SSB Wings Thank team. you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. How are the things going? Tell me first. It's going great, sir. I mean, it's a very big achievement for me. And right now I'm preparing for my academy. I've heard that there's a lot of ragda. So yeah, I'm running every day. I'm making myself strong so that everything goes easily, sir. Yeah. So this is one saying na ki be prepared before you go to the academy. Do Yes, sir. everything you want to make yourself fit for that training, Right, sir. Right, sir. which I know will be Right, hell. sir. And we suggest all our alumni as well. I'll be ready, So, sir. I'll be ready. No problem. yeah, great. So, Vashisht, let's tell the aspirants like how you prepared, है ना? So, starting from Yes, sir. since you are an army brat as well, I have met your father as well, Colonel Thapa. So, Yes, sir. tell me how it came to your mind that you want to started preparing for the CDS thing, how you prepare for your written aspect, then after written, how did you came across SSB Wings? What was your thought process behind joining the SSB Wings? And how SSB Wings helped you in getting this recommendation? And how well you were groomed before your SSB? So starting from the very beginning, as you have mentioned already, I come from an army background. So I was always motivated to join the armed forces, but maths had always been a problem for me. So NDA was out of the question. And it was the written examination I cracked in my third attempt, sir. Because the first two attempts I gave when I was in college, and I was not able to devote like the proper time needed to crack those examinations. And so after I completed my graduation from Christ, a BA in psychology, I decided to take a drop year and to give it all, to give the examination all my efforts. And so उस time तो the paper pattern was different. Now it has changed. So but उस time में I did not study for history and economics. वो मतलब दो सब्जेक्ट थे जो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे बिकॉज उनको भी एक्सक्लूड करके मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे इफ आई प्रिपेयर वेल. सो Mm-hmm. इन साइंस 30 मार्क्स उस टाइम के पेपर के हिसाब से वी हैड 30 मार्क्स फॉर साइंस. पॉलिटिकल साइंस के लिए 10 मार्क्स था, जियोग्राफी के लिए भी 10 था, एंड करंट अफेयर्स में 15 to 17 क्वेश्चंस का मतलब मार्क्स बन जाते थे. तो आई कैलकुलेटेड एंड आई सॉ कि विदाउट अननेसेसरली हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को क्यों ऐड करना. सो दीज वर दी टॉपिक्स दैट दीज वर द सब्जेक्ट्स दैट आई फोकस्ड ऑन. एंड एक अरिहंत की एक बहुत मोटी सी किताब आती है सर, वो तो सबको पता ही होगा, पाथ बिल्कुल. फाइंडर. Pathfinder. उसमें काफी सारा सामान है, तो मैंने थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी किया उसमें से बिकॉज सब कुछ तो पढ़ना बहुत मुश्किल है. साइंस में भी काफी ज्यादा इन डेप्थ दिया हुआ था उसमें. बट इन जनरल Hmm. उस टाइम साइंस मतलब सिर्फ 10th तक की आती थी. 9th एंड 10th की अगर साइंस से कोई थरो है तो साइंस का उसका क्लियर है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ. एंड Definitely. पॉलिटिकल साइंस के लिए देयर वाज लक्ष्मीकांत, बट दैट वाज आल्सो वेरी इन डेप्थ. So I Yeah. will suggest everyone ki keep your material limited and focus more on revision. And obviously, sir, with the new pattern, I've seen many of my friends have given the examination. They are saying it is very unpredictable of questions क्या क्या आ रहा है, because अभी recently pol science के limited questions आए थे. I've heard कि only 5 to 6 questions were asked. So Mm-hmm. according to that, I've seen कि I would suggest anyone to take up a coaching or guidance, because the Okay. current written maybe scenario has become very unpredictable. It is quite hard to understand what all portions will be coming. And Mm-hmm. so minimum books, and there's a lot of resources such as YouTube.
that one can use to prepare for the written examination. Give mock tests and keep revising day in, day out. And that is the main mantra that I use, sir. And I was able to score a good chunk of marks in the CDS examination. Yeah, CDS 2 2023. That, yes, sir. that is very quite, And uh, we can see in the merit as well, because एक SSB right, एक is a different aspect और written का भी एक combination बनता है. yes, sir, Definitely, yeah. absolutely. Go ahead. Hmm. So then I got my result in October itself, and then I started to think कि अच्छा भाई अब now this is a big opportunity for me. I need to use it अच्छे से. Mm-hmm. So I'm from Dehradun. My father is from Dehradun, and there I saw a lot of posters of SSB wings. Sir. Okay. And मैंने नेट वेट में भी सर्च किया, saw a lot of good reviews about the institute, and Hmm. I thought to give it a try. I enrolled in it, and it gave me a good idea of what SSB is and what it demands. Basically, the 11 to 10 days का जो हमारा course वहाँ पे था, it gave me a good overview of what SSB is. कि Mm-hmm. एक एस्पिरेंट या फिर एक क्या बोलते हैं कैंडिडेट को क्या प्रिपेयर करके जाना है एंड व्हाट ही शुड बी एक्सपेक्टिंग वहां पर. द मेन इफ वन लाइनर अगर कोई पूछे कि एसएसबी क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो योरसेल्फ. If Hmm. one is aware of themselves, if one is aware of why he took that action in his life, हर चीज का अगर उसके पास एक प्रॉपर रीजनिंग है, then that candidate has a fair chance of clearing SSB. Hmm. Obviously self awareness के साथ you have to look more into the place where you're staying, उसके क्या क्या मतलब पिन कोड, anything can be asked because they want to check कि एक इंसान जहाँ रह रहा है वहां पे उसके लिए अवेयर कितना है. बेसिक बिल्कुल. अवेयरनेस अगर नहीं है तो फिर, and so that is the main thing. After that, sir, it comes in key you need a good guidance because currently when you look in the market, in the coaching market, YouTube या फिर net में, I won't suggest any child or any aspirant to go into the net and look in any मतलब किसी भी random चीज में जाकर check नहीं करने को, because there are a Mm-hmm. lot of नॉन क्रेडिबल सोर्सेज ऑन द इंटरनेट एंड सबके बहुत कन्फ्लिक्टिंग से वो बच्चा कहीं से कुछ और पढ़ रहा है, फिर कहीं पे आके बिल्कुल. वो कह रहा है कि टीएटी में ऐसा नहीं लिखना है, ये लिखना होता है. तो Hmm. स्टिक टू वन मेंटोर, जैसे वी हैव इन एसएसबी विंग्स और एनी अदर इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोई जाना का वो करता है. स्टिक टू देम, लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज हॉच पॉच करने का कोई फायदा नहीं है. एवरी मेंटोर इज गुड. And SSB Mm-hmm. Wings में भी they also provided us कि what are the basics, what are they looking in TAT, चाहिए क्या. कभी भी बिल्कुल. SSB Wings में ऐसा नहीं हुआ कि सबको ना एक क्या बोलते हैं एक स्टोरी दे दी कि यही लिखना है, ऐसा फोटो आया तो ये लिख दो, ऐसा फोटो आया. Mm-hmm. सर gave us a very good overview of it is on our experiences, कि हमारे एक्सपीरियंसेस को यूज करके थोड़ा अपना क्रिएटिविटी डालकर इफ वन राइट्स अ स्टोरी काफी नेचुरल आता है, कोच्ड नहीं बिल्कुल. लगता. So So, the SSB Wings, yes sir. so you very well talked about. We also say that key aspect is know yourself, then improve yourself, Yes. and then be yourself. And Yes, sir. we never spoon feed any aspirant or the student. We always Yes, sir. says Yes. that it should come from your inner. जो तुमने Right. एक्सपीरियंस करा है, जो तुम्हारा एक्सपोजर है, इट शुड कम फ्रॉम योर बैकग्राउंड ओनली. दैट इज द Yes, sir. Yes. रीजन कि हमारा थोड़ा समय लगता है. Because when you Yes, sir. came to us, I remember we all three, me, Rajiv sir and Vishal sir, we tell कि हाँ भाई ये बच्चा रिजल्ट जरूर देगा. But we also were Right. amazed कि यार पहले अटेम्प्ट में दे देगा. That was a very quite big achievement for us and for you as well. We know कि Yes, sir. रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा. बट बच्चे को थोड़ा काम करना होगा, बिकॉज हम नहीं चाहते Yes, sir. कि हम उसकी 100 स्टोरी लिखवा दें. अब 100 स्टोरी मैं Yes, sir. लिखवा दूंगा या राजीव सर या कोई भी लिखवा देगा, बट अल्टीमेटली वहां जाके वो ब्लंडर कर देगा फिर चीजों का. Right, So sir. Right, sir. it has to come from the experience and exposure of the student only. That is where the natural Obviously, sir. part comes into the picture, and then he can portray himself very well. जो वो be yourself वाला Rightly टैग है, said, sir. तब जाके Yes, sir. वो Yes, वहां sir. पे फिट हो जाता है. तो very good यार. And if I talk about your SSB attempt, like how कितने की reporting थी, how many students reported, and how was the screening part?
एक एक करके बात करेंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द Yes, रिपोर्टिंग sir. एंड द स्क्रीनिंग पार्ट. एनीथिंग यू वांट टू शेयर एंड टेल द एस्पिरेंट्स दैट विल हेल्प इन देयर attempts further attempts. So in the screening part, I had my SSB in 11 SSB Prayagraj. It was Hmm. on the 2nd April. 2nd April was my screening, and Hmm. I will call it luck that जितने candidates वहाँ पे आए थे कम थे, मतलब comparatively it was only 56 या 57 candidates, which is Hmm. a low number considering कि average 80-70 चलता है. क्योंकि So उस टाइम पे it रिटर्न increased भी my होता है ना, रिटर्न होता है उस yes टाइम sir, पे yes sir, इन द सेम मंथ, तो right sir, स्टूडेंट्स अवॉइड दैट yes sir, पर्टिकुलर yes sir, मंथ. yes sir, हम्म. right या sir. कंटिन्यू. So, and around 30 got screened in, sir. So it is a good average, considering कि हम्म. 50 को चाहे and 30, nearly more than half got selected. So that is a good average. And so PPDT की बात करें तो सिंपल सा ही पिक्चर था एक. There were two people standing एक खेत में, and हम्म. the general narrative, general story जो बनी सबकी मिलाकर वो यही थी कि इट इज एन एग्रीकल्चर के अराउंड बनाया, कि कैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वगैरह लाकर ना उस ग्राउंड को, उस एरिया को और प्रोडक्टिव बनाया. ओके. सबने गाँव वाँव, साइड में एक कैनाल भी दिख रहा था, उसको भी ऐड किया लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह डालने के लिए. एंड हम्म. सर स्क्रीनिंग तो यही था. बेसिकली स्क्रीनिंग में इम्पोर्टेंस जो मैंने देखा है कि एवरी कैंडिडेट शुड हैव अ गुड स्माइल, गुड चेयर ऑन हिज फेस, की मतलब ना उसको देख के लगे कि हाँ भाई ये बंदा एक्चुअली एंजॉय कर रहा है उस सिचुएशन को. बिकॉज हम्म. व्हेन 8 to 10 पीपल आर सिटिंग ऐसे सेमी सर्कल में, अगर आप नर्वस होंगे तो आप बिल्कुल मतलब ना आपके मुंह पे ऐसे एकदम, आपका मुंह ऐसे एकदम स्ट्रेट होगा, आप ऐसे से डरते रहोगे. सबसे हम्म. इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग में है कि मतलब अच्छे से ना मुंह पे एक हल्की सी स्माइल रखी हुई है, राइट टू लेफ्ट देख रहा है अच्छे से, सबसे आई टू आई कांटेक्ट बनाकर अपना नरेशन दे दिया. नरेशन का हम्म. भी फॉर्मेट जैसे हमें एसएसबी विंग्स में बताया था, उसको भी बाय हार्ट करके जाओ, ताकि व्हेन यू हम्म. सिट इन द स्क्रीनिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसे कहीं पे ना कुछ रुकावट नहीं आए, पर आराम से वो बिल्कुल. फॉर्मेट आपने बोल दिया कि इन द फॉलोइंग पिक्चर आई हैव परसीव्ड सो एंड सो कैरेक्टर्स, एज वगैरह सब. एंड सर स्क्रीनिंग इट वेंट वेल. ओ हमारा आई एक आर. कॉमन नरेटिव भी बन गया था. ओआईआर सर, ओआईआर वाज वेरी इजी सर. इट हम्म. वाज वेरी इजी. इलाहाबाद का आई डोंट नो इलाहाबाद का, बट 11 एसएसबी का आई हैड heard earlier also कि the OIR is a fairly easy one. And sir हम्म. it was, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि मैंने मतलब लाइक दोनों सेट में सिर्फ 2 से 3 ही गलत किए होंगे मैक्स. तो ओके. OIR तो मेरा काफी अच्छा गया. हम्म. एंड सर तो दैट वाज स्क्रीनिंग सर. उसमें वर्बल एंड नॉर्मल इट वाज ऑल इजी सर, नथिंग. उसके बाद डे 2 में हमारे साइकोलॉजी के टेस्ट वगैरह थे, टैट वगैरह. हम्म. सर साइकोलॉजी के टेस्ट में आई वुड से कि आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, बिकॉज ओके. जो W80 था, सॉरी दी SRT, मैंने थोड़ा हम्म. उसमें ना टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इश्यू हो गया था. हम्म. उसमें आउट ऑफ द 60 पीपल से कि स्वीट स्पॉट इज 40 to 45, मतलब उसमें आपका क्वालिटी भी अच्छा रहता है, क्वांटिटी भी सही है. डोंट हम्म. डोंट अटेम्प्ट 60 पूरा, बिकॉज 60 पूरे करोगे तो दैट इज लाइक कि सबकी क्वालिटी एकदम खराब हो, आपने रिएक्शन अच्छे नहीं दिए होंगे. तो 40 to डेफिनेटली. 45 मतलब लोग कहते हैं इट इज द स्वीट स्पॉट. मेरे 40 भी टच नहीं हुए, मेरे 39 पे रह गए थे. ओके. And so that was a problem. And I would suggest everyone, every aspirant to who's preparing for the SSB to keep a check on the time. क्योंकि हम्म. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे. SRT, टैट, W80, अगर आपको टाइम का हिसाब नहीं है तो आप स्टोरीज अच्छे तो बना, आपका कंप्लीट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है. उसके नहीं बाद नहीं, साइक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एज जस्ट वी ऑल्सो यस मेक यस श्योर कि बच्चे को ना दो वहां पे टाइम ऐसे मॉनिटर करने का होता नहीं है, बट इट शुड कम फ्रॉम दी यस यस मसल मेमोरी कि यार यस यस अच्छा अब मैंने लिखना शुरू करा है तो आई नो दैट आई कैन राइट 100 वर्ड इन दिस पर्टिकुलर मिनट्स. तो वो राइट सर, राइट सर. एक मसल मेमोरी में फीड हो जाता है जब स्टूडेंट अपनी ऑलमोस्ट 100 200 स्टोरीज प्रैक्टिस करता है, एसआरटी डेली सेट प्रैक्टिस करता है, वेट प्रैक्टिस करता है, तो इट ही नोज यस सर, और शी नोज कि हाँ भाई अब ये टाइम खत्म होने वाला है. तो राइट सर. प्रैक्टिस तो ये मसल मेमोरी में फीड होनी चाहिए. हाँ, फिर यस सर, टैट ऑब्वियसली में सर. टैट में एनी पिक्चर यू केम अक्रॉस जो यू आर ब्लैंक आउट No, कि so क्या there बनाऊं. was no such picture. मतलब I would say कि I had prepared quite well for the TAT and PPTT. हम्म. And इसी में मतलब बात ये आ जाती है कि
again, you need a very good mentor if you want to score well in PPDT and TAT. Because net में हर दूसरे source में there are different elements. And हम्म if you don't take coaching from a good institute, आपका practice करने का कोई फायदा होगा ही नहीं. Because बिल्कुल आप 2-3 महीने पूरा practice कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप जो practice कर रहे हो वो गलत है. उसमें मतलब पूरे आपके एलिमेंट्स गलत जा रहे हैं. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो टू अ गुड कोचिंग, जैसे एसएसबी विंग्स वगैरह. वहां पे सर आपको मतलब एक बताएंगे कि हाउ डू यू राइट टैट, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, होता क्या है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर. एटलीस्ट उसको जानने के बाद फिर बच्चा जाके घर में अगर प्रैक्टिस करे तो वो सेंस बनाता है कि ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान कर रहा है, एक डायरेक्शन है हम्म उसको. अदरवाइज हम्म लोग घर में बैठ के यूट्यूब से देख लेते हैं, वो कुछ भी लिखे पड़े हैं, फिर बाद में जब उनका लास्ट में पता लगता है कि बिल्कुल ही ऑफ स्टोरी है, कोच लग रही है, रटी हुई लग रही है, फिर वो दैट सर्व्स एज अ नेगेटिव सर. तो हम्म। टैट एंड पीवीडीटी का तो यही सीन है सर. आई परफॉर्म क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माय तो परफॉर्मेंस. यू 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 वर इन अ थॉट प्रोसेस कि यार साइक में और थोड़ा अच्छा हो सकता था, स्पेसिफिकली एसआरटी पार्ट में, which definitely श्योर would सर, have पक्का improved अच्छा हो your सकता था. merit. फिर यस सर, then यस सर. GTO, GTO, how was the GD, एंड सर, GP and बट हम्म डे टू में सर, अच्छा, शुड आई टॉक अबाउट जीटीओ फर्स्ट और इंटरव्यू? नो नो मेरा नो डे टू नो, में इंटरव्यू भी हो गया था. अच्छा इंटरव्यू पहले आ गया था इस बार। यस यस सर, मेरा पहले आई वाज टेस्ट नंबर 3 सर. तो मेरा ओके साइक के दिन ही उतना सारा हैवी, उसके बाद फिर मेरा वो हो गया था, इंटरव्यू आ गया था. हाँ, दिस कम्स इन अ टू वे, जैसे ये लकी भी होता है कई बार, ये अनलकी भी यस सर, होता है, यस सर. बिकॉज जब एक राइट वो सर. मूड चल रहा होता है ना कि हाँ यार टेस्टिंग चली रही है तो लेट इट बी, आई विल गिव यस सर, माई यस सर, यस सर. ऑल, आई विल गिव माई 110% ऑन डे टू ओनली। हाँ, तो फिर हाउ वाज द इंटरव्यू? राइट सर. बिकॉज आई सर तो रिमेम्बर व्हेन यू गेव मी द इंटरव्यू, इट लास्टेड फॉर अराउंड वन एंड हाफ आवर एंड इट वाज वेरी ग्रिलिंग, राइट. आई रिमेम्बर। एंड यू वर लाइक कि यार कि क्या हो गया है, ये ऐसी वाली चीज थी यस तेरे सर, साथ यस में। सर, यस सर. बट शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द ओरिजिनल एसएसबी ना इंटरव्यू नाउ। Sir, so like what happened with between us, it was a good wake up call for me. Ki हम्म there's a lot of things that I need to touch upon, and that really helped me to crack the interview in my original SSB. हम्म So after my psych test, मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था कि यार मैंने साइकोलॉजी में ये कर दिया, और अच्छा हो सकता था, ऐसे तो मेरे मार्क्स नहीं हम्म बन रहे होंगे. एंड उसी टाइम फिर मेरे को पता लगता है कि मेरा इंटरव्यू भी है. तो फिर मैं वहां भागा फटाफट वो कॉल सेंटर में. वो वहां पे मैंने फोन वोन लगाकर पापा से बात की. एंड फिर मेरे डैड ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, तुम जो हो गया उस पर ध्यान मत दो. एंड दिस इज अ गुड पॉइंट, बिकॉज एसएसबी में वन प्रॉब्लम दैट आई सीन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स है, वो वो अपना क्या बोलते हैं, एसेसर बन जाते हैं. हम्म। वो लोग बैठकर एसेस कर, मतलब हर चीज के बाद वो लोग बैठकर एसेस करते हैं कि यार मैंने ये लिखा है, एसेसर क्या सोचेगा. वो करेक्ट करना करेक्ट। नहीं है, लीव दैट टू द एसेसर्स. आप एंजॉय द आपने जो प्रोसेस। काम कर दिया है, यस सर, यस सर, ऑब्वियसली आपने जो काम किया है बस हो गया, खत्म, उसका बुक क्लोज करो एंड नेक्स्ट वाले पे अच्छे से फोकस करो कि भाई अब इसको मेरे को अच्छे से करना है. एंड हम्म सो विद दैट सेम मेंटालिटी सर, आई वेंट फॉर माय इंटरव्यू सर. एंड इंटरव्यू, I would say, was the easiest part of the whole SSB, sir. Easiest. Matlab, I also enjoyed the process. I had two interviewers जो बैठे थे. One हम्म was a trainee. So हम्म they said कि साइड में जो इंटरव्यूअर बैठे हुए उन पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ जो मैं आगे बैठा हूँ मेरे पे. मैंने बोला यस सर, बट क्वेश्चंस लास्ट में मुझसे एंड के तरफ दोनों ने पूछे मुझसे. तो इट वाज अ वेरी स्मूथ इंटरव्यू, बस बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे बारे में कुछ भी पूछ लेगा. आई हैड प्रिपेयर्ड वेल. कुछ भी पूछ ले, वो मेरे को सब पता है. एंड हर चीज का एक रीजनिंग तैयार था मेरे पास. कोई भी हम्म। क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल हैंगिंग मैंने नहीं छोड़ा हुआ था कि मैं ये आंसर दूंगा, उसके बाद वो पूछेगा क्यों, तो मैं बस उसको, मैं बोलूंगा कि सर मेरे पास कोई रीजनिंग. हर चीज के लिए एक रीजनिंग रहना आपके पास जरूरी है. बिकॉज दैट शोज कि यार ये बंदा प्लान करके चीजें करता है, रादर देन जस्ट इम्पल्सिवली चीजों को जाके करना. दैट इज अ करेक्ट गुड करेक्ट। थिंग दैट वन कैन ऐड उनके उसमें. एंड सो इंटरव्यू तो मतलब जैसे मैंने बताया, इट वाज क्वाइट इजी मेरे लिए. जस्ट नो योर हम्म सेल्फ. आपकी OIR शीट जो है, यू विल फाइंड इट नेट में, या फिर यू गो टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, दिल गिव यू अ सैम्पल OIR. OIR नहीं, सॉरी सर, व्हाट इज दैट,
PIQ। आई फॉरगॉट द नेम, PIQ, यस सर। तो हम्म PIQ आपको मिल जाता है, यू फिल दैट अप एंड PIQ से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, गो थ्रू देम वंस, मेक अ नोट ऑफ देम हम्म कि यार क्या क्या मेरे लीडरशिप रोल्स क्या क्या रहे हैं। एंड लीडरशिप हम्म रोल्स, अनदर प्रॉब्लम दैट आई हैव सीन इज अचीवमेंट्स वगैरह में पीपल थिंक कि बड़े बड़े अचीवमेंट होने चाहिए, कि मतलब नेशनल खेला हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है, दैट इज नॉट नेसेसरी। वो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा, मेरे को तो जब तक मैं इंटरनेशनल फिर नेशनली खेला हूं मैं मेंशन करूंगा ही नहीं। यू कैन मेंशन हम्म एनीथिंग, आपने अगर हाउस क्या बोलते स्कूल में हाउसेस वगैरह होते हैं, उसकी भी अगर इंटर मैचेस वगैरह खेले हुए हैं, क्लास के भी मैचेस खेले हुए हैं, तो आप उसको डालो, बिल्कुल। उसको अपने उस पेपर में डालो, बिकॉज दैट शोज कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है, आपका एक को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपका इंटरेस्ट था। अगर आप कभी हम्म। कैप्टन वगैरह थे किसी टीम के, किसी भी ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी के, तो उसको डालो। दैट शोज योर लीडरशिप क्वालिटीज एंड दैट यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज स्टफ, दैट यू कैन डू थिंग्स, दैट यू कैन गेट थिंग्स डन। क्लास के बिल्कुल। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव भी थे, आप कभी हेड बॉय भी थे, कभी स्पोर्ट्स मास्टर भी थे, सब डालो, बिकॉज दैट इज हम्म व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। वो चाहते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट से ना आपका एक बड़ा पिक्चर बने, कि आप हो कौन, आप कर क्या सकते हो। हम्म। सो तो दैट इज अनदर पॉइंट दैट, यस सर। वो कहते हैं ना कि कोई अचीवमेंट छोटी नहीं होती। तो राइट सर, राइट सर। मेक श्योर यू टेल, तुमने कुछ भी करा है जीवन में, स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक बिग। ठीक है यस ना? सर, तो अचीवमेंट छोटी भी हो बताओ। यस सर, यस सर। और एज यू करेक्टली मेंशन कि तेरे ना हथियार तैयार थे जंग से पहले। यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल द रीजंस। तो यस सर, इंटरव्यू में यही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। व्हाट कैरी फॉरवर्ड इज द कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब बंदे के पास ना रीजंस हो, एंड ही नो कि यार मेरे पे कुछ यस भी सर। आएगा, आई नो वेरी वेल आई कैन टैकल दिस थिंग। क्योंकि जब व्हेन यू राइट सर। गेव मी द मॉक इंटरव्यू, तो यू नो हाँ ये सारे एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यस सर, पॉपुलेशन ऑफ योर टाउन से लेके एवरी बिग थिंग। यस सर, यस सर। तो गिव मॉक इंटरव्यूज, आई विल टेल ऑल द एस्पिरेंट्स की मॉक इंटरव्यूज दो। उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड नॉट ओनली गिविंग द मॉक इंटरव्यूज, यू शुड ऑल्सो टेक द मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि उससे फिर दूसरी साइड का राइट सर। समझ में आता है तुम्हें कि हाँ भाई वो अब क्या यस सर, सोच यस सर। रहा है और क्या मैं पूछ सकता हूँ उससे। तो दैट यस इज सर। द की एस्पेक्ट। एंड इन एसएसबी विंग्स भी मेक श्योर कि बंदा दोनों साइड बैठे, मॉक राइट इंटरव्यू सर। दे भी और लेना भी चाहिए उसे। हाँ देन। यस सर। So, there's another aspect of interviews. It's called CIQ. बेसिकली हम्म कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हम्म काफी लोग, मतलब काफी एस्पिरेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ इट, दे से कि हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर इट, मतलब 14 to 15 क्वेश्चंस एक के बाद एक पूछ लिए, भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है। इट्स हम्म वेरी सिंपल कि ये जो CIQs वगैरह होते हैं, दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। सो बिल्कुल। एज मेंशन, आपका जो PIQ है उसके थ्रू अगर आप पूरा चले जाओ, जाते रहो, उसको बिल्कुल रट जाओ कि मतलब मेरे 10th में कितने मार्क्स आए थे, उसके बाद आगे की सारी चीजें आपको बिल्कुल रटी हुई है। घर पे आप क्या हम्म काम करते हो, पापा की क्वालिफिकेशंस क्या है, इनकम वगैरह, एनीथिंग, सब कुछ अगर आपको रटी हुई है, तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन दोस CIQs। एक दो ऊपर नीचे हो जाए चलता है, बट इन जनरल पूरा मतलब आपका इतना स्मूथली जाएगा ना, बिकॉज दिमाग में यू वोंट बी स्पेंडिंग टाइम ऑन वो इन्फॉर्मेशन निकालने में कि वो मेरे पापा की इनकम कितनी है। यू विल ऑलरेडी नो द हम्म। आंसर, आपको बस उसको एक के बाद एक डालना है, कि बस 10th में बस। इतना है, 11th में इतना है, 12th में दोस्तों का नाम ये हम्म। है, दोस्त क्यों बनाता हूँ, ऐसे ऐसे करके, मतलब इट्स वेरी इजी। एंड सो दैट इज द होल जिस्ट ऑफ द इंटरव्यू सर, नो योर सेल्फ, रट जाओ अपने आप को, नो योर सेल्फ थरली, हैव अ रीजनिंग फॉर एवरीथिंग एंड यू आर गुड टू गो सर फॉर द इंटरव्यू पार्ट। चलो ग्रेट। एंड जीटीओ? And GVO sir, first of all we had the group discussion sir on day 3. हम्म तो ग्रुप डिस्कशन तो एज ऑलवेज इट इज हॉच पॉट सर। हम्म फ्रेशर्स थे तो थोड़ा हॉच पॉच कम हुआ, बट स्टिल मैं बताता हूँ कैसे, मतलब इट वाज 8 to 6 to 8 of us, एंड सर उसमें से एक बंदा तो मतलब ऐसा था कि ही केप्ट ऑन स्पीकिंग। वो हम्म। पूरा डिस्कशन, दो ग्रुप डिस्कशन थे, उन दोनों ग्रुप डिस्कशन में वो सिर्फ बोलता रहा। उसने उसने पता नहीं किस बाहर किसी चीज पे ना अपना आईज ऐसे लॉक ऑन कर लिया था, किसी पेड़ या फिर कुछ में, और वो बस बोलते रहा। वो कुछ भी बोल रहा है, मतलब वो व्हाइट नॉइज बन गया था, उसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, उससे कोई बात भी नहीं कर रहा, लेकिन वो ना बोले पड़ा।
तो हम्म ऐसे हम्म बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो ना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगेंगे। आपको बीच बीच में कोई काट देगा, आपकी कोई सुनेगा नहीं, दो लोग अपने में डिबेट करने लग गए। तो हम्म। हमारा तो फिर भी केओस कम था, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मतलब अपना कंपोजर रखना है। यू हैव टू, देयर इज एसेसर, वो हमें वो देख रहा है, पीछे एसेसर बिल्कुल। बैठा है, ट्रस्ट हिम। वो सब कुछ देख रहा है कि आप इंडिविजुअली, 6 लोग हैं, 6 से 8 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। हम्म। वो आराम से पीछे से बैठ के देख पा रहा है कि कौन एक्चुअली बोल रहा है और कौन बड़बड़ करके रिजेक्ट कर पड़ा है। तो तुम एज अ इंडिविजुअल अपने पॉइंट्स वगैरह हम्म। अच्छे से आगे रखो, एंड बीच बीच में डेकोरम मेंटेन करने का ट्राई करो कि लेट चेस्ट नंबर सो एंड सो स्पीक, या फिर बीच बीच में रोका थोड़ा बहुत, अपना ऐसे ही रहना है, नॉर्मल हाथ वाथ नहीं चलाने उसमें, बढ़िया अपने अपने पॉइंट्स दो एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स आराम से। बीच बीच में थोड़ा हम्म। असर्टिव हो, बट आपको हाथ वाथ चलाकर अपना डोमिनेंस असर्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट असेसर इज सिटिंग, ट्रस्ट हिम, ही सीज कि आगे हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो दैट वाज द ग्रुप डिस्कशन पार्ट सर, आराम आराम से आई गेव गुड पॉइंट्स। हम्म And so after that, we had group planning exercise, sir. And हम्म। group planning exercise, I would say it went very well, sir. हमारा मतलब बढ़िया हमारा ग्रुप बैठा है, and the sir came, he gave us a पूरा overview of the location. हमारे सामने पूरा एक टेबल था जिसमें पूरा मैप बना हुआ था. And so after we wrote our individual solution, then he told us कि अच्छा भाई अब ग्रुप बनाओ and discuss a common solution. हम्म। So we were discussing the common solution, and मतलब काफी हद तक हो गया था। I would say 70% of the solution was done. अब बस यही बाकी था कि बच्चों को या फिर जो इंडिविजुअल्स है उस सिचुएशन में, उनको हम्म। कैसे एक साथ वापस लाकर उनके कॉलेज भेजना है। बिकॉज ऐसे होता है बिल यूजुअली लास्ट में ना, हाँ एक लोकेशन होता है कि यहाँ पे इतने टाइम तक पहुंचना है, तो वो हमने ध्यान दिया नहीं था। टू उतने कंप्लीट टाइम द तक बस पहुंचे अल्टीमेट ही, और टास्क, जो हाँ एंड यस वाला सर, यस टास्क। सर, टू कंप्लीट लास्ट वाला जो टास्क है। तो फिर हम्म हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अच्छा जा रहा था डिस्कशन, उसके बाद सर ने अचानक से रोकने को बोल दिया, जबकि अच्छा हम्म। चल रहा था डिस्कशन। उसके बाद हमने बोला ठीक है, तो सर सेड कि कोई बंदा मतलब अपने आप को नॉमिनेट कर लो, अच्छा। वॉलंटियर करो कोई। उन्होंने हम्म बोला था समवन वॉलंटियर टू गिव दी। हम्म। नाउ सर देयर इज अ डिफरेंस कि अगर सर बोले कि किसी को सेलेक्ट करो करने के लिए तो अलग है, आप खुद उठ के हाँ। वो नहीं कर सकते उसमें, फिर बोला है कि ग्रुप देखेगा। लेकिन अगर आपने बोला है, सर ने जैसे बोल दिया कि खुद ही को भी नॉमिनेट कर सकते हो, कोई भी उठ के अपना आंसर दे दो, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। मैंने बोला, मैंने अपने दोस्तों को पूछा एवरीवन की इफ एवरीवन इज ओके कैन आई मूव फॉरवर्ड विद द नरेशन, तो एवरीवन सेड हाँ हम्म हाँ श्योर श्योर। तो फिर मैं खड़ा होकर अपना नरेशन देने लगा, एंड अच्छे से मैंने पूरा डिस्क्राइब किया फलान ठिकाने, ये वो पूरा अच्छे से मैंने उनको बता दिया, एंड एवरीवन वाज अग्रीइंग, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसा था हम्म। मैंने सारा ग्रुप का जो था पूरा बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ग्रुप का स्टोरी था वो आप बताओ, नॉट योर हम्म। ओन सोल्यूशन। तो आई वॉज हाँ, वो कीपिंग नहीं इन आना माइंड चाहिए। कि ग्रुप ने क्या क्या, यस ग्रुप ने क्या क्या किया है, मैं अपना सोल्यूशन तो नहीं दे रहा, मैंने दिमाग में अच्छे से रखा। फिर आफ्टर वाइल आई सॉ कि सोल्यूशन ही खत्म हो गया, इसके आगे तो डिस्कशन ही नहीं हुई है। तो मैं बस वहां पे हाथ में मेरे पॉइंटर था, वो लेके ऐसे खड़ा हुआ हूँ, और सर भी ना मेरे को देख रहे, क्योंकि सर को भी पता है कि इसके आगे तो इन लोगों ने डिस्कस किया ही नहीं, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया हमें। तो ओके। उसके बाद मैं फिर ऐसे खड़े हो गया, और फिर मैंने बोला अब तो ऐसे ऐसे तो एंड नहीं कर सकता, तो मैंने इम्प्रोवाइज करके कुछ ना कुछ करके उनको बोर्ड पे बैठाया, मैंने दिमाग चलाया उस टाइम अपना, एंड फिर एक सोल्यूशन निकाल के मैंने दे दिया। और फिर नहीं उसके बाद नहीं, सर ने पूछा डज एवरीवन। ये यस अच्छा सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया तूने। सी, यस सर। जीडी में ना बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। तो राइट सर, राइट सर। बी इट एनीथिंग लाइक स्पीकर एज वेल, स्पीकिंग तो अच्छी चाहिए ही चाहिए, बट लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, फिर श्योर देन सर, श्योर सर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस। सर स्ट्रक्चर एनालिसिस सर हमारा उस टाइम नहीं हुआ था, हमारा प्रोग्रेसिव, हाँ यस सर, स्ट्रक्चर एनालिसिस ग्रुप अपना फुल ग्रुप हम्म टास्क एंड आर हाफ ग्रुप टास्क जो था, और हम्म। टीजीटी वाज द फर्स्ट थिंग। तो उसमें फिर मैंने देखा कि अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ हॉच पॉच उसमें भी, ओके। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गो फॉरवर्ड, किसी को भी पीछे खड़ा नहीं होना है। हर बंदा हम्म। यही बोलता है कि मतलब मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, एंड फिर ऐसे अच्छा। करके, बट यू हैव टू स्टे काम, आपको आराम से मतलब रहना है, पीछे से भी आप अपने ऑप्शंस वगैरह दे सकते हो, एंड जस्ट ट्रस्ट इन द जीटीओ द ऑफिसर। बिकॉज अगर वो देखेगा ना कि आगे एक ब्लॉक हो रहा है, तो वो पीछे से हमेशा बच्चों को आगे बुलाता है। यू विल गेट अ हम्म चांस, कभी भी ऐसा नहीं होगा आगे वाले पूरा ऑब्स्टिकल करके चले गए, आप बस पीछे खड़े रह गए। वो चेंज करवाएगा ऐसे करके। तो दैट इज हाउ यू अप्रोच दी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एंड
हाफ ग्रुप टास्क में आपको और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप और बिल्कुल। अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस, अपने लीडरशिप क्वालिटीज, बिकॉज देन ग्रुप बहुत छोटा हो जाता है एंड फिर वो अच्छे से देख पाता है कि कौन बंदा एक्चुअली आगे जाके इनिशिएटिव ले रहा है, कौन कोऑपरेटिव है, पीछे कोई लोड तो नहीं रह गया। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पीछे लोड रह जाता है, इतना सारा प्रेशर बनता है ना कि लोग पीछे लोड ही छोड़ देते हैं, लास्ट में पूरा क्रॉस हो गया हमारा भी। एंड लास्ट में सर ने बोला कि तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो, हमने बोला ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो पूरा लोड पड़ा हुआ था पीछे, तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट जो आता है। हम्म। राइट सर, तो दैट इज इट सर। उसके बाद डे 4 में देयर वाज दिस बिफोर दी वी हैव दिस ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। उसमें भी हम्म। द मेन थिंग दैट आई हैव सीन कि मेन एस्पेक्ट क्या होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल, इट इज टू सी कि एक बंदे में जोश कितना है। तुम्हारा बिल्कुल। वॉर क्राई, दे से कि यू हैव टू मेक अ वॉर क्राई, सम पीपल से जय माता दी, बजरंग बली। एंड उसमें भी जो जोश है ना एक बंदे में कि पूरे टीम को अपने साथ खींच के ले जाना है, टाइम टू टाइम बंदा वॉर क्राई चिल्ला रहा है, वो सबका वेट कर रहा है, अच्छे से वो रोप पकड़ के भाग रहे हैं, सबका केयर कर रहा है। तो दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ स्कोरिंग गुड इन द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। उसके बाद सर वी हम्म। हैव आवर लेक्चरेट, वी हैड अ लेक्चरेट ऑन डे 4। एंड लेक्चरेट का तो सर सिंपल फंडा, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, आपका करंट अफेयर करेक्ट। बहुत अच्छा होना चाहिए and हम्म। keep making notes. जैसे when I was in SSB wings, they gave us a list of like every topic that is उस टाइम पे जो current affairs में है। तो I sat and I made paragraphs on all of those topics की ना 4 4 minutes या 3 3 मिनट बात करने के लिए मेरे पास होना चाहिए। तो हम्म। lecture it is all hard work, उसमें तो कुछ there's no compromise उसमें। हम्म। Then so after that we had our command task and I was lucky to be nominated by many people। मतलब मेरे ग्रुप में टू एटलीस्ट 4 या 3 ने तो मेरे को नॉमिनेट किया था, तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर। एज अ और वो थोड़ा सबॉर्डिनेट। दिखाता हम्म। है कि हाँ, यस सर, सो टू गेट नॉमिनेटेड आपको अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब आप व्हेन यू आर इन ऑफ टाइम में जब हो, तो सबसे बात बात करो आपके बैच वालों से ना, बिकॉज आप जितना उनसे खुलोगे मिलोगे उतना ही फिर नेक्स्ट दिन कमांड टास्क के दिन उनका मन करेगा कि हाँ भाई मैं वशिष्ठ को बुला लेता हूँ, इससे कल मेरी बात भी हुई थी, थोड़ा जमता भी है। आप बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से बात नहीं करोगे, लास्ट में यू आर एक्सपेक्टिंग कि कमांड टास्क में मेरे को बुला लेंगे, तो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। एंड यू कैन कमांड नेवर बी टास्क में एन सर, इंट्रोवर्ट इन एसएसबी। यस सर, यस सर, हम्म। दैट इज फॉर श्योर सर। एंड कमांड देन। टास्क में मेरे को एक काफी मुश्किल टास्क मिल गया था, तो उसमें मैं थोड़ा फंस गया था, मतलब बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे को डिलिबरेटली इतना मुश्किल दिया था। तो मैं वहां बिल्कुल अटका हुआ था एंड उसके बाद सर ने मेरा सामान भी ले लिया, उन्होंने बोल बल्ली से मैं कुछ बनाने लग गया था, बन गया था मुझसे, एंड फिर सर ने बोला बल्ली भी नहीं है। तो अच्छा। मैं मतलब वहां खड़े होके ना बस स्माइल करने लगा कि अब तो आगे कुछ बन ही नहीं रहा है इसके। तो फिर सर ने मेरा स्माइल देख लिया, उन्होंने बोला क्यों हंस रहे हो। तो फिर मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि सर सॉरी सर, ऐसे करके आई वोंट स्माइल अगेन। कहते नहीं नहीं जोक है तो बताओ, तो ऐसे करके, बट आई डोंट नो हाउ सर टुक इट। बट इट वाज अ काफी हार्ड टास्क था एंड कर लिया मैंने वो कुछ ना कुछ करके। हम्म। वो उसके लिए तो एनी कोचिंग यू गो टू, एसएसबी विंग्स में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह है जहाँ पे जाकर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बैक सपोर्ट, फ्रंट सपोर्ट, योर फलक्रम कहाँ पे चीज रेस्ट करती है। बिकॉज जब तक आपको ये फंडामेंटल्स नहीं पता, जब तक आपने जाकर 10 10 ऑब्स्टिकल्स सॉल्व नहीं किए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, आपको वहां जाके वो होगा ही नहीं। आपको समझ बिल्कुल। ही नहीं आएगा कि मैं फट्टा कहाँ से डालूं, मैं बल्ली कहाँ फंसाऊं, बैक सपोर्ट क्या होता है, फ्रंट सपोर्ट, बंदे गिर जाएंगे आगे जाकर। तो हम्म। इट इज गुड, इस एस्पेक्ट में भी आपको बहुत जरूरी है कि आप एक कोचिंग लो। एंड सो सर दैट वाज कमांड टास्क सर। एंड एंड कॉन्फ्रेंस। कमांड टास्क में कॉन्फ्रेंस सर मेरा बहुत छोटा गया था। बस वो अच्छा। बिल्कुल ऐसी ही, बस मैं अंदर घुसा एंड फिर दे वर लाइक कि स्टे कैसा था, कितने दोस्त बनाए, खाना अच्छे से खाया, ओके बाय, खत्म। बस मेरा हाँ। कॉन्फ्रेंस तो इतना ही था। तो मैं बाहर आया तो मेरे दोस्त लोग कह रहे थे नहीं नहीं भाई तेरा तो श्योर शॉट है, तेरा तो क्लियर है, इसीलिए तेरा कॉन्फ्रेंस छोटा गया। बट ऐसा कुछ हम्म। नहीं है, कॉन्फ्रेंस के भी टाइम्स वो करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कोई देखकर ये नहीं बता सकता कि वेदर और नॉट ही सेलेक्टेड। और सो दैट वाज द होल एक्सपीरियंस सर। नहीं नहीं, वेरी वेल यार। वेरी वेल एक्सपीरियंस एंड a good thing you have shared all your experience with the aspirant. I think it will definitely help the other aspirants, तो उससे कुछ सीखेंगे राइट सर, मे बी। होपफुली सर, होपफुली। हर प्रोसेस को नहीं बट एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को भी सीख गए और तब भी उनका सिलेक्शन हो यस गया। दे सर। विल डेफिनेटली थैंक यू एंड अस एज वेल फॉर दिस वीडियो।
तो Right, sir. चलो भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑफिसर Thank कैडेट. you, sir. Make Thank you, sir. sure you do well there as well. And we as a team, SSB Wings, think that you will definitely do wonders there as well. ठीक है. Thank you, वहां sir. पे Thank you. बहुत सारे एलुमनाई हैं तेरे साथ में जो अभी जा रहे हैं वहां पे. मीट Yes, देम. sir. Yes, sir. बात हो गई, sir. यूनियन बनाओ वहां पे, अपना भी एक परचम लहराना Right, है sir. वहां पे Right, sir. एकेडमी के अंदर, है ना. पक्का, sir. बाकी पक्का. Yes, sir. बाकी पीओपी में जरूर बुलाइयो, मिलेंगे वहां पे भी. हाँ, sir. पक्का, sir. For sure, sir. For sure, एंड sir. एंड कभी इधर चक्कर लगे दोबारा तो आइयो, मिलकर जा. Right, sir. ठीक है. Right, sir. पक्का होगा, sir. मिड Yes, sir. टर्म या उसके टर्म ब्रेक में. Right, sir. दिन में तो आता जाना होगा, sir. मैं I'll हम्म. come and visit, sir. I'll make sure. चलो चलो, गुड वशिष्ठ. नाइस Right. टॉकिंग यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank नेक्स्ट you, sir. जर्नी. चलो Right. भाई, Thank you, sir. जय हिंद.